ویل السلام علیکم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں لاہور سے آرسا اسٹڈی کنسلٹنسی ماڈل ٹاؤن 12M. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی, بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, دین بہت ساری تعریفیں نیک لوگوں کے لیے. اللہ کا بہت شکر ہے, آج ہمیں اگین ایک پیکٹ ریسیو ہوا رسپیکٹڈ ہنگیرین ایمبیسی سے, اور فار دا تصور حسین فرام گجرات. ویل آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ. کیا حال ہے؟ مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. ویل الحمد للہ. تصور حسین گجرات سے ہیں, یونیورسٹی آف سیگت جا رہے ہیں BS بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنے. آئی تھنک 3.5 سے 4 ایئر کا پروگرام ہے. سپٹمبر انٹیک 2021 کے لیے. الحمد للہ. ٹوڈے از 28 آف اگست اینڈ ڈے از فائنل. سفر آرسا کے ساتھ کمپلیٹ. خیر, انٹروڈکشن لیتے ہیں انہیں سے, بات انہیں کی طرف موو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا. جی بتائیے, تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیں, کہاں سے ہیں, کیا ہے؟ میرا نام تصور حسین ہے اور میرا گجرات سے تعلق ہے. گجرات کے پاس گاؤں ہے ساروں کے گھر سے. اور میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ پنجاب کالج سے کی ہے, لیکن میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے اکاؤنٹنگ فائنینس پنجاب یونیورسٹی. ٹھیک ہے. 2 ایئر ایسوسیٹ ڈگری پر. ٹھیک ہے. ADP ہے, تو وہ انٹرنیشنل پہ گریجویشن میں نہیں آتی, اس لیے مجھے انٹر کے بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے ان BSc بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ. ڈن. یہ بتائیے کہ کیسے سٹارٹ ہوا سفر, کیا پلان کیا, کس نے بتایا, پھر کیسے ہنگری فائنلائزڈ, کیا سفر کیا کس طرح رہا؟ بیسیکلی مجھے میرے دوست نے بتایا تھا جس کا نام کون حسن ہے. اس سے پہلے ایک لڑکے کا آپ کی طرف سے ویزا لگا تھا, اعزاز. یس. اور اس کا جو اسے میں نے انفارمیشن لی, اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا, تو میں نے آپ سے کال کی. آپ نے مجھے کافی اچھا گائیڈ کیا تھا. پھر آپ کے ساتھ میٹنگ جو اسکیجول ہوئی, تو جب ہم آئے یہاں پہ آپ سے بات ہوئی, بہت اچھا لگا. تو میں نے آپ کو کیس دیا اور کچھ 1 ماہ بعد میرا ایڈمیشن وغیرہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اسکائپ انٹرویو آپ نے تیاری کروائی تھی, بہت اچھی تیاری کروائی میم. ہم نے یونیورسٹی آف سیگت میں اسکائپ انٹرویو میں آپ اپیئر ہوئے. جی. فرسٹ اٹیمپٹ میں رزلٹ آ گیا. فرسٹ اٹیمپٹ میں رزلٹ آ گیا ود ان اے ڈے. ٹھیک ہے. اس اسٹیج تک آپ کا فائنینشیل ایکسپینس کتنا ہو گیا تھا؟ فائنینشیل صرف وہی جو اپلیکیشن فی اینڈ دا پروسیسنگ آف آرسا. ایسا ہی ہے. یس. ڈن. کیونکہ آپ ریفرنس پہ تھے ہارون, اور ہارون کے ایک دوست آلریڈی جا بھی چکے ہیں. بہت مبارک ہو ہارون آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, مگر آپ جس کو لے کر آتے ہیں اس کو ہم بھیجتے رہتے ہیں مل کر. خیر, آپ کا بہت شکریہ ہارون, جزاک اللہ. ان کے بہت اچھے دوست ہیں وہ. ایک بار آئے بھی ہیں آپ کے ساتھ 2 بار. اوکے. سو پھر انٹرویو پاس ہوا, اس میں آپ نے بہت محنت کی. بڑا اچھا انٹرویو ہوا ہوگا وہ. کتنی دیر کا انٹرویو تھا؟ انٹرویو میرا بیسیکلی 2 سے 3 منٹ کا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو یونیورسٹی نے لیا. ٹھیک ہے. ڈن. اور اس کی تیاری میں میں آپ کے پاس بھی آیا تھا, یعنی کہ کچھ دن پہلے یہاں پہ آپ نے مجھے بتایا تھا, گائیڈ کیا تھا کہ کیسے انٹرویو دینا. اس سے پہلے میری کوئی تیاری نہیں تھی. اچھا, کیا جب سفر شروع ہوا تو آپ کے ذہن میں تھا یہ ساری تیاری کرنی پڑے گی, اس طرح کچھ ہوگا, ایسا کوئی اسکیجول بھی چلے گا؟ یہ جب میں نے اسٹارٹ میں آپ سے کے پاس آیا, آپ نے بتایا کہ آپ کا اسکائپ انٹرویو وغیرہ انٹرنس ایگزام جس میں میتھ ٹیسٹ ہوتا ہے, انگلش ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ جب میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے مجھے کال کی کہ جو ہے آپ کی انٹرویو کی تیاری کروانی ہے ہم نے. تو میں پھر آیا یہاں پہ, میری کوئی تیاری نہیں تھی, بالکل کوئی تیاری نہیں تھی. آپ لوگوں نے تیاری کروائی اور بہت اچھی تیاری ہوئی. جب کہ انٹرویو ہوا اور ود ان اے ڈے میرا جو ہے رزلٹ آ گیا. ٹیوشن فی پے کر دی؟ ٹیوشن فی کتنی فی تھی؟ فی 44. سمسٹر کی؟ سال کی. یس. پھر تیسرا اسٹیپ آ گیا بہت امپورٹنٹ, امبیسی کا. یہاں پہ ایک تو امبیسی کا خرچہ تھا, ایک کنسلٹینسی تھی, اور ایک اس سے بھی بڑا مشکل کام تھا ڈاکیومنٹیشن. بڑی محنت کی اس کے لیے. جی سر. اوکے. اب تک آج تک اس آفس میں ڈے اسٹارٹ سے اب تک کتنا ایکسپینس کر چکے ہو سر؟ ٹوٹل جو تھا انکلوڈنگ 1 ایئر ٹیوشن فی 1 ایئر 11 ساڑھے 11 لاکھ. 11 لاکھ روپیہ آپ کا ہو چکا ہے. جی. کس طرح
ऑलमोस्ट आपकी एप्लीकेशन पे 50,000 एक्सपेंस हुआ जी सर। हुआ था जी। या कम हुआ या ज़्यादा हुआ? एप्लीकेशन नहीं, ज़्यादा हुआ आपकी। तो 220 यूरो 220 टेस्ट की फ़ी भी थी, 35 यूरो एप्लीकेशन फ़ी थी, तो 350 यानी कि आपका तो 65,000 एप्लीकेशन हो गई। जी सर। ओके, देन 4,400 यूरोस यू पे द वन ट्यूशन फ़ी, और 100 यूरोस पे एक्सपेंस आता है ट्रांसफ़र करने पे, तो 9 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फ़ी गई, पौने 10 हो गया। जी सर। राइट, एंड देन 25,000 एम्बेसी खर्चा। जी सर। हो गया 10 हो गया, और या एग्जैक्टली 1.5 लाख रुपया, 1,30,35,000 रुपया कंसल्टेंसी। या एब्सोल्युटली राइट। तसव्वुर का आज तक के एक्सपेंडिचर का अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन इंक्लूडिंग 1 ईयर ट्यूशन फी ऑफ सैगेट 4,400 यूरो मिलाकर ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज़, 1030 to 11 लाख रुपीज़ का खर्चा। ऑफिस भी आए हो, इस्लामाबाद भी गए हो, और डॉक्यूमेंटेशन भी की है। सो इसका मतलब है अगर हम इसको 1030 भी ना कहें, 11 कहें इज़ सुटेबल। सो एक स्टूडेंट ने लास्ट कमेंट्स में वीडियो में कहा सर हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मगर एक दो चीज़ें आप मिस कर जाते हो। वो एक क्वेश्चन ये था कि आप स्टूडेंट से हमें ये भी बताओ ना कि हमारा इस स्टूडेंट पे इसका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। एक तो मैंने कोशिश की इस बार ज़रा ये बात भी की जाए। दूसरा, फिर वो वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन पे आपकी हेल्प हुई? जी सर। कैसी हेल्प हुई यार सर? आरसा वालों ने सारी गाइडलाइन मुझे दी कि कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कहाँ से अटेस्टेशन करवानी है, यानी कि मुझे एक चेकलिस्ट सेंड की गई जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी थी जी कि यहाँ से अटेस्टेशन करवानी है, पहले एकेडमिक जो बैकग्राउंड की डॉक्यूमेंट। वाकई आपको फील होता है कि एक कंसल्टेंसी फर्म ने आपकी काम के लिए वाकई मेहनत की है? जी सर की। मैंने जितनी दफ़ा भी कॉल की है ना मैम वगैरह को, किसी ने यानी कि होता है ना कि रूडली बात की हो नहीं हो, मैंने 10 दफ़ा भी दिन में कॉल की है, मेरे से अच्छे रिस्पांस आया। ये इस वजह से है कि आप खुद भी बहुत इज़्ज़त से बात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, और डेफिनेटली आपका राइट था आप हमें काम कॉल करें, वरना इस मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाते अगर आपको गाइड ही ना करते। अच्छा, क्या जहन में था यार ये इतनी मेहनत तलब काम है? शुरू दिन में था? पहले दिन में नहीं था। नहीं था? पहले दिन में था यार खर्चा होगा, वीज़ा लगे वीज़ा लगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए पता चला, और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स खुद बनाते हैं ना, हमें पता होता है कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया, वैसे में हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। बहुत होता है। वेरी नाइस पॉइंट फ्रॉम द तसव्वुर हुसैन कि जब डॉक्यूमेंटेशन आप अपने हाथ से तैयार करते हैं, आपको पता होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका ब्रीफिंग लेवल बहुत अच्छा इंक्रीज कर जाता है वहाँ। ऐसा ही है? दूसरा पॉइंट, एम्बेसी में कैसा क्वेश्चनर आपके साथ हुआ, क्या हुआ, वो क्या प्रोसीजर था, कितनी देर का? जी, एम्बेसी में सर मैं गया सुबह तकरीबन 9 बजे पहुंच गए, डन। तो उसके बाद उन्होंने कॉल की कि वो विंडो वगैरह 3 बनी हुई हैं, उधर विंडो 1 पे कॉल की कि जो सा कोई भी एक आके ना सबमिट करवाए, डन, सबमिट करवाई फाइल, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट दे दिया। ठीक है। उसमें मेरा बिजनेस टेस्ट था और इंग्लिश टेस्ट आया, तो वो सॉल्व किया। उसके बाद वो जो बिजनेस टेस्ट थे कितने क्वेश्चन थे? वो 10 MCQs थे। और वो कितने तो आपके सही लगे आपको? वो जब मैंने स्टार्ट किए ना, मैंने यानी कि मुझे 8 तो कंफर्म था मेरा। ठीक है। तो 2 का नहीं था कंफर्म, डाउट था। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो फिंगर वगैरह लेते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह। उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे कॉल की इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद वीज़ा। वो इंटरव्यू कटने और कैसा था आपका? 3, 4, 5 मिनट? कितनी देर का था? 2 मिनट का इंटरव्यू। जस्ट 2 मिनट का इंटरव्यू। ओके, क्या पूछा उन्होंने? उसमें मुझे उन्होंने पूछा कि इंट्रोडक्शन, व्हाई यू चूज हंगरी, राइट, व्हाई यू चूज सैगेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद हु इज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर, राइट, एंड एंड पे क्वेश्चन उसने एक किया व्हाट अबाउट योर अकोमोडेशन। ओके, डन। सो अकोमोडेशन तो सैगेट देती नहीं थी। आप जब मुझसे फाइल ले रहे थे, हमने तो टेम्पररी बुक्ड की थी। जी, ऐसा ही है, जो कि अब उड़ भी चुकी होगी। जी, ऐसा ही है। तो आप वरी नहीं थे यार ऐसी डॉक्यूमेंटेशन लेकर जा रहा हूँ मैं, यार ये पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ? सर वो एक्चुअली मुझे से जब उसने क्वेश्चन किया ना कि अकोमोडेशन का, मैंने उसे बताया कि जो है ये यूनिवर्सिटी तो प्रोवाइड करती नहीं, मैंने सेल्फ बुकिंग की है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, मुझे इस बात का पता है, लेकिन मैं जब वहाँ पे जाऊँगा कोई अफोर्डेबल ऑप्शन ले लूँगा जो मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है। ये आंसर दिया आपने? ये आंसर दिया मैंने। डन।
फाइनेंशियल स्पॉन्सर का भी आपने आंसर दिया? फाइनेंशियल स्पॉन्सर का उसने सिर्फ इतना पूछा मुझसे कि हु इज़ योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर, बस खत्म। बस आपने कहा फादर? फादर है। उसके बाद भी कुछ बोला? मैंने बोला मेरे फाइनेंशियल स्पॉन्सर फादर हैं, ही इज़ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड नाउ ही रन हिज ओन बिजनेस। ठीक है, आंसर दिया मैंने। दैट्स फाइन, वेल वेरी नाइस यार। एम्बेसी जाने से पहले डर था? काफ़ी ज़्यादा। किस तरह के फियर थे उस वक्त? नर्वसनेस थी कि पता नहीं, पहले कभी गए नहीं एम्बेसी, बिल्कुल, तो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब वहाँ पे गए हैं देखी है जगह, कूल हो गया था एक दफ़ा। उस टाइम जब आप वहाँ पहुँचे हो, उससे पहले जाने से पहले मुझसे फाइल रिसीव की थी? जी सर। क्या मैंने वो सारा स्केच सिनेरियो एटमॉस्फेयर समझाया था? बिल्कुल सारे। वो फ़ायदा हुआ अगर वो मैं ना समझाता तो? बिल्कुल ही पता नहीं था ना, फिर ज़्यादा जाने का भी नहीं था पता ना। ठीक है, कि एम्बेसी कहाँ लोकेटेड है? एम्बेसी कहाँ पे लोकेटेड? ठीक है, डन। और क्या आपको कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं नहीं चाहता कि कोई रेगुलर रूटीन की हमारी सारी बातें हों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ी डिफरेंट, आरसा ही नहीं कुछ और आप जो बताना चाहो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वीज़ा फाइल को करने के लिए। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स का बताया, और कोई बात बताएं स्टूडेंट्स के लिए जो ये देखें वीडियो तो उनको फ़ायदा हो इस चीज़ का, प्लीज़। सर सबसे बड़ी बात है कि जो आप कंसल्टेंट चूज़ करते हैं, हाँ, उनके बारे में आपको, यहाँ पे मैंने सर गुजरात में भी काफ़ी के पास गया हूँ, देखा है कोई भी ऐसा गाइड नहीं करता है। ओके, यानी कि सबर का कहना का मकसद ये लग रहा है मुझे कि व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट योर अब्रॉड जर्नी, तो आप अपना कंसल्टेंट, टीचर, गाइडर कोई बंदे का पुत्र चूज करें। जी बिल्कुल, सादा लफाज में ये मीन, एक तो वो नॉलेज वाले हों, बेस सर वहाँ से स्टार्ट होने वाली है जी। सेकंड और क्या इसके अलावा? इसके बाद सर बेसिक, जब आपने हमें चूज किया तो आपको फील नहीं हुआ था कि अदर कंसल्टेंसी फर्म्स आर चार्जिंग वेरी लेस अमाउंट इफ यू कंपेयर विद आरसा? हम तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सर्विसेज का। फिर सर उसका फ़ायदा ये भी है ना कि आप लोग सारा प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, क्लासेस जैसा देते हैं, आप कोई भी नहीं देता। ये भी एक फ़ायदा है। एक और भी तो फ़ायदा है, अगर मैं ऐड करूँ, आपको याद ना हो, अगर लास्ट स्टेज पे जाकर वीज़ा ग्रांट ना हो तो आपकी सर्विसेज, कंसल्टेंसी फीस वापस रिफंडेबल है, जो कोई भी नहीं करते शायद। ऐसा ही है। ये पॉइंट आपको अट्रैक्टिव लगा था? जी सर बिल्कुल, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा, और फिर और क्या नज़र आया आपको इसके अलावा? इस कितना सफ़र रहा हमारे साथ आपका टोटल? आपके साथ 4 माह। 4 माह का मीन 4 माह आप समझते थे ये 4 माह लग जाएंगे? स्टार्ट में तो कोई नहीं था, यही था कि सिर्फ जाना है, बाकी जैसे जैसे चले हैं तब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेल अल्लाह का शुक्र है, सबर ने बिल्कुल नेचुरल वे पे जो उसके दिल में, देयर इज़ नो एनी स्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, हमने एक नेचुरल डिस्कशन की है, आप लोगों के लिए चेंज किया। क्या कहना चाहोगे आरसा फर्म के बारे में? चलें लास्ट क्वेश्चन। आरसा के लिए यही है कि जो सा है, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका माशाल्लाह कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा कॉर्पोरेट किया। और दूसरी बात ये है कि जो सा है आप यहाँ वहाँ, मैं तो कहता हूँ घूमने से अच्छा है इनके पास ही आए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा। हमें क्या रिकमेंड करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हम करते हैं, कहाँ पे हम लोगों? सर मुझे कहीं नहीं लगा। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे गाइड किया गया कि मुझे नहीं लगा, मुझे यहाँ पे मैं हम लोगों ने खुद ही कहा। कितने के विजिट किए थे फिर मेरे पास आपने? गुजरात से विजिट करना, ये डरते हैं ना लोग, या दूसरे सिटी में जाना, स्पेशली इन लाहौर, और लाहौर में ज़्यादा फ्रॉड भी है बानिस्बत दूसरे सिटीज़ के। तो ये जो फियर है इन लोगों का, स्टूडेंट्स का, इसके बारे में क्या कहोगे? बताओ। गुजरात, मलकवाल, गुजरात, पिंडी, भावलपुर, पता नहीं कहाँ से, इस बारे में क्या कहो? सर सबसे बड़ी बात होती है जब आप कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं ना, तो ये मेहनत करनी पड़ती है। ओए माशाल्लाह, उसके लिए तो मेहनत करना, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, ऐसा ही नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें अगर आप हम हैंडल करेंगे तो आप भी कुछ आगे बनेगा। डन। सबर कह रहे हैं कि अगर आप अपने सिटी से दूर हैं, पास दूर से हैं, 2, 4, 6 घंटे की ट्रैवलिंग है, मेरे पास कराची के क्लाइंट हैं, पेशावर के क्लाइंट हैं, कोयटा के क्लाइंट हैं, वी हैव द रजिस्टर्ड क्लाइंट इन आवर ऑफिस। वेल अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ट्रस्ट ऑन आरसा, एंड इस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं रखना, अपने जहन से ये बाल निकाल देना चाहिए। ऐसा ही है सर, जैसे अब मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्टेशन करवाने के लिए ना सिर्फ मोफा से 4 चक्कर इस्लामाबाद के लगवाए थे। ये छोटी बात नहीं है यार, एक चक्कर के अंदर अगर फाइनेंशियल एक्सपेंस डालेंगे तो 5,000 एक, और फिर खवारी लहदा पर मेहनत करनी पड़ती है। मगर देखें ना, आज अल्लाह का शुक्र है, यू आर द कॉन्फिडेंट, आप इतने कॉन्फिडेंट इस पूरे 4 महीने में कभी भी नहीं हुए।
ایسا ہی ہے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہارون, دین تصور کی فیملی, same my team ARSA, one of the best team alhamdulillah I believe in the Pakistan. Second, I'm always thankful to Allah Pak. I 100% blind, I mean trust, توکل ہے اللہ پاک پہ. ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا 11 سال پہلے چھوٹے سے جگہ سے. So I was alone and I have a dream in my mind. آج 11 سال کے سفر پہ محنت کرتے, نقصان کرتے, فائدہ کرتے یہاں تک پہنچے ہیں. Now it's a team of the 15 people of the ARSA and بہت سارے دنوں کا انتظار, اور بہت ساری ویڈیو میں آپ نے یہ سنتے آئے تھے نا کہ میں ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن ایڈ کرنے لگا ہوں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ marketing for the Canada, for the Germany and for the Turkey, especially my dream destination, world best destination میں بھی یہ کینیڈا شامل ہے. اور بہت سارے لوگوں کی پروفائل وہاں نہیں بنتی, جیسا کہ کینیڈا کے لیے آئلس 40 لاکھ کا ایکسپینڈیچر ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ بھی ہم ہنگری کی طرح ہی کام کریں گے انشاءاللہ. بیسٹ سلیکشن, بیسٹ انسٹیٹیوٹ, بیسٹ پروفائل, فائنینشیل میٹر, یس آلویز ہم ایکسپینسو رہیں گے. ہم اچھا کام کریں گے نا تو انشاءاللہ ہم ایکسپینسو بھی رہیں گے. اور اللہ پاک اللہ پاک سے آسانیوں کی امید ہے, اور آپ سب لوگوں کے انشاءاللہ وہی بانٹیں گے. اللہ حافظ, فی امان اللہ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.